آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت آ رہی. تو پچھلے جی بار حضرت. جی تو پچھلے بار ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کون سی چیزیں حیض اور نفاس سے حرام ہو جاتی ہیں، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 8 چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے حیض یا مطلب کوئی حیض اور نفاس میں مبتلا ہے تو اس کے اوپر 8 چیزیں حرام ہو جائیں گی. کون سی؟ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تلاوت قرآن پاک نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے قرآن کریم کو چھو نہیں سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اور اسی طریقے سے جمع جو ہے، ٹھیک ہے، حائضہ اور نفسا عورت کے ساتھ جو ہے جمع کرنا یہ بھی حرام ہے. جمع تو حرام ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کسی بھی طریقے کا استمتاع جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے حرام ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اکثر دنوں کے بعد غسل کے یا نفاس کے جو اکثر دن ہیں 10 دن یا 40 دن، اس کے بعد جو ہے عورت بغیر غسل جو ہے اس کے بھی وتی کر سکتی ہے. لیکن اگر جو ہے اکثر دن نہیں گزرے ہیں بلکہ اپنی عادت کے مطابق 7 دن گزرے ہیں یا 8 دن گزرے ہیں، اس صورت میں کم سے کم ایک نماز کا وقت جو ہے گزر جانا ضروری ہے، اور اس نماز کے وقت کم سے کم اتنا وقت اسے ملے کہ جس میں وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکے. اور نماز سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کہہ سکے، ٹھیک ہے. اگر اتنا وقت ملا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جو ہے پھر اب جو ہے وہ وتی کر سکتی ہے بغیر غسل کے، اور اس کے اوپر وہ نماز کی قضا جو ہوگی وہ لازم ہوگی، ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو ہے حائضہ اور نفسہ عورت جو ہے ان کے اوپر جو ہے روزے جو ہیں ان کی تو قضا لازم ہے لیکن نمازوں کی قضا لازم نہیں. روزوں کی قضا لازم ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں، ٹھیک ہے. چلیں، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ وہ اس کے لیے وہ چیزیں جن کا کرنا حائضہ اور نفسہ عورت جو ہے اس کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے. اب کیونکہ اسی سے ہی تعلق ہے، نجاستی سے تعلق ہے، تو اب کے یہاں پر جنابت کے بارے میں بتا دیں. تو یاد رکھیے وہ شخص جس کے اوپر غسل واجب ہے، اسے کہتے ہیں جنوبی. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جنوبی. کبھی ہم کہتے ہیں نا غسل جنابت، ٹھیک ہے. تو جس بندے کے اوپر غسل واجب ہے اور جس بندے کے اوپر وضو واجب ہے اسے کہا جاتا ہے محدث. اسے کیا جاتا ہے؟ محدث، ٹھیک ہے، جس کے اوپر حدث واقع ہو گیا. اور جنابت جو ہے جنوبی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر جنابت جو ہے، ٹھیک ہے، وہ واقع ہو گئی. تو یہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا یہ تو ہم نے اس عورت کے لیے پڑھا ہے کہ جو حیض یا نفاس جو ہے اس میں مبتلا ہے. اب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو جنوبی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جن کے اوپر غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہے. تو ان کے اوپر کیا چیزیں حرام ہیں کہ جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں. تو ان کے لیے جو ہے 5 چیزیں بتائی گئی کہ 5 چیزیں حرام ہیں، اور یہ کامن ہی ہے، ٹھیک ہے. نماز کا پڑھنا یہ حرام ہے، جنابت کی حالت میں قرات قرآن جو ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ قرات قرآن سے مراد کیا ہے؟ ایک آیت کا پڑھنا یہ بھی حرام ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کا چھونا بغیر کسی گلاس کے، بغیر کسی کیا کہتے ہیں ایسی چیز کو مطلب ڈائریکٹلی چھونا یہ منع ہے، ٹھیک ہے، بغیر گلاس کے. اسی طریقے سے مسجد کے اندر داخلہ اور طواف کرنا یہ بھی جنوبی جو ہے اس کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو جنوبی کے لیے. اور وہ شخص کی جو محدث ہے، محدث سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کا غسل نہیں ہے. تو ایسے شخص کے اوپر کیا چیز ہے؟ اس بندے کے اوپر 3 چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر 3 چیزیں حرام ہیں. کون کون سی؟ نماز کا پڑھنا، بغیر وضو کے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا. جان بوجھ کر کسی شخص نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے طواف کعبہ یہ بھی جو ہے بغیر وضو کے یہ جائز نہیں. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کا چھونا بغیر مصحف کے، ٹھیک ہے، بغیر غلاف کے یہ بھی حرام ہے. تو دیکھیں بغیر غلاف کے قرآن کریم کا چھونا چاہے حائضہ ہو، نفسہ ہو، ٹھیک ہے، جنوبی ہو یا محدث ہو، ہر صورت میں قرآن کریم کا چھونا جو ہے وہ حرام ہے. قرآن کریم کا چھونا جو وہ حرام ہے. اور جو ہے لیکن تلاوت حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ محدث ہے، اس کے اوپر وضو فرض ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا شخص قرآن کو چھو تو نہیں سکتا لیکن قرآن کو پڑھ سکتا ہے، قرآن کو پڑھ سکتا ہے. اور جو جنوبی ہے یا جو ہے حائضہ ہے یا نفسہ ہے، ایسی صورت میں نہ وہ قرآن کو چھو سکتے نہ وہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی زبانی بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آگے یہ فرما رہے ہیں کہ استحاضہ جو ہوتا ہے، استحاضہ کا جو خون ہے نا، جو
ज़्यादा जारी हो हैज़ की सूरत में और 40 दिन से ज़्यादा जारी हो इस्तिहादा की सूरत में, ठीक है। तो इस्तिहादा जो है वो ऐसा ही है जैसे कि नक्सीर जो फूटती है, नक्सीर फूटती है ना, नाक से जो खून निकलता है कि वो हमेशा निकलता चले जा रहा है। इसी तरीके से हर वो जख्म जो हमेशा बहता रहता है कि किसी बंदे को इतना टाइम ही नहीं मिला कि जो है वो मतलब इतना टाइम मिलता है कि वो बगैर मतलब तहारत के साथ वो नमाज पढ़ पाता। तो इस्तिहादा का भी हुक्म वही है जो दूसरी माजूरियों का हुक्म है, जो दूसरी माजूरियों का हुक्म है कि जिससे बचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कि कोई शख्स ऐसा है कि उसका ऐसा जख्म है कि वो हमेशा बहता रहता है खून, ठीक है। इसी तरीके से कोई शख्स ऐसा है कि उसकी जो रीह जो है, ठीक है, हवा जो है वो खारिज होती रहती है, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो किसी बीमारी की तरह इसी तरीके से इस्तिहाजा भी। और अगर कोई औरत जो है वो इस्तिहाजा की हालत में है, ठीक है, 10 दिन से ज्यादा खून आ रहा है या 40 दिन से ज्यादा खून आ रहा है, तो ऐसी सूरत में ना ही उसके ऊपर नमाज हराम है, और ना ही उसके ऊपर रोजा हराम है, और ना ही उसके ऊपर वती हराम है, ठीक है। तो वो नमाजें भी पूरी पड़ेगी 10 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, रोजे भी पूरे रखेगी 10 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, और वती करने की भी इजाजत है 10 दिन और 40 दिन के बाद, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर इस्तिहाजा का हुक्म आ रहा है, तो अब ये यहाँ पर माजूर जो है उसका भी हुक्म बता रहे हैं, ठीक है। तो माजूर वो शख्स होता है कि जिसके पास कोई उज्र मौजूद हो, जिसके पास कोई उज्र जो है वो मौजूद हो। उज्र का माना क्या होता है कि जो है कोई उसकी ऐसी बीमारी हो कि जिसकी वजह से जो ना उसको इतना भी वक्त नहीं मिल पाता कि वो मुकम्मल वजू करके नमाज पढ़ सके तहारत के साथ, ठीक है। और ये क्या है, ये अभी खैर मैंने आप लोगों को बताया, ये वो है कि जैसे कोई शख्स है, उसके कोई जख्म है और उस जख्म से खून जो है वो बहता जा रहा है, ठीक है। वो कोशिश कर रहा है मतलब, और इतना भी वक्त नहीं मिलता। और ये देखें कि बहता जा रहा है से मुराद ये नहीं है कि मतलब 24 घंटे बह रहा है, बल्कि जो है मतलब थोड़ी थोड़ी देर में बहा जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई शख्स जैसे जो है बाद औक़ात क्या होता है कि बड़ी उम्र में खासकर ये मर्दों के साथ होता है कि पेशाब जो होता है ना वो रुकता नहीं है। तो पेशाब की बूंदें, हालांकि बंदा पेशाब करके उठाए और फिर उसने सिंजा भी कर लिया, तमाम चीजें होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेशाब की बूंदें जो है वो निकलती रहती हैं, गिरती रहती हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे सलसल बॉल कहा जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई मर्द है कि अब मतलब निकल रहा है पेशाब के कतरे, इसी तरीके से मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कोई शख्स ऐसा है कि उसके रीह जो है वो खारिज होती है, हवा खारिज होती है, ठीक है। कि मतलब ऐसा कोई वक्त उसे मिलता ही नहीं है कि जो रीह खारिज ना हो। फिर 5 मिनट में हो गई, 2 मिनट में हो गई, 3 मिनट में हो गई, 10 मिनट में हो गई, ठीक है। तो ये हो रही। तो कोई भी ऐसा उज्र मौजूद है कि जिसकी वजह से कोई शख्स जो है वो इतना टाइम ही नहीं पा रहा कि वो वजू करके नमाज पढ़ सके, तो ऐसा शख्स माजूर होता है। क्योंकि ये माजूर है तो अब इसके ऊपर कुछ चीजें माफ है। क्या चीज माफ है? तो ऐसी सूरत में ये है कि जो उसका उज्र है ना, उस उज्र की बिना पर उसका जो तहारत जो है वो जायल नहीं होगी, उसकी तहारत जो होगी वो जायल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ वही उज्र। तो अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके जो है रीह जो है वो खारिज होती रहती है, उसकी रीह जो है, हवा जो है वो खारिज होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे शख्स का उज्र क्या है? ऐसे शख्स का उज्र है रीह का खारिज होना। तो ऐसा शख्स, तो इसी तरीके से कोई शख्स ऐसा है कि जिसके खून बह रहा है, ठीक है, और उसको इतना मौका नहीं मिल रहा कि वो नमाज तहारत हासिल करके नमाज पढ़ सके, ठीक है। तो इनका क्या है, इनके लिए हुक्म ये है कि ये हर नमाज के शुरू होने के वक्त ये वजू करेंगे, दाखिल होने के बाद, पहले नहीं। कोई भी नमाज का वक्त हो, ठीक है, तो नमाज के वक्त के दाखिल होने के बाद ये वजू करेंगे, और वजू करने के बाद जो है अपनी नमाजें और कुरान की तिलावत, ये जो कुछ भी वो तमाम की तमाम चीजें, ठीक है, तमाम फराइज नमाजें, नफिल नमाजें वो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। भले ही अब इनकी जो है रीह खारिज होती रहे, खून निकलता रहे, इनका उज्र जो है ना वो भले ही बरकरार रहे, खून निकल रहा है, रीह खारिज हो रही है ठीक है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन शर्त क्या है कि नमाज के वक्त शुरू होने के बाद इन्होंने तहारत हासिल करी हो, वुजू किया हो इन्होंने, और जब तक वो नमाज का वक्त नहीं चला जाता तब तक भले ही जितनी बार इनके खून निकले, रीह खारिज हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, तो इनका वजू जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन अब ये वजू टूटेगा कब? तो ये वजू टूटेगा जब वक्त जो है वो निकल जाए, ठीक है। एक तो ये होगा, और दूसरा ये होगा कि उज्र के अलावा कोई ऐसी चीज पाई गई जो नाक़िज़ वजू हो, तो तब भी इनका वजू टूट जाएगा। तो अब कोई शख्स ऐसा है कि जिसके खून निकल रहा है, ठीक है, जैसे समझिए आप इस्तिहाजा वाली औरत ही, ठीक है, इस्तिहाजा वाली औरत है, अब इसके खून जारी है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में इसने क्या किया, नमाज का वक्त जैसे ही शुरू हुआ तो इसने जो है वजू किया, और वजू करने के बाद अब नवाफिल भी पढ़ रही है, फराइज भी पढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अब जो है ये पूरे के, अब जैसे जोहर का वक्त आप ले लें, दोपहर के 12:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक,
ठीक है, दोहर का वक्त रहता है उमूमन। तो ये पूरे के पूरे 4 घंटे के दरमियान उस औरत के भले ही खून जारी है, ठीक है, लेकिन उसने 12:30 बजे के बाद उसने जो है वजू किया था, तो अब वो आराम से अपनी तमाम की तमाम फर्ज और नफिल नमाजें भी पढ़े, कुरान पाक की तिलावत भी करे, छुए भी, सब कुछ, वो सब कुछ कर सकती है, ठीक है, भले ही खून जारी है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और नाक़िज़ वजू पाया गया, यानी अब ये इस्तिहाज़ा वाली औरत जो है, ठीक है, इसने इसकी रीह खारिज हुई, तब ऐसी सूरत में अब इसका वजू टूट जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ जो एग्जैक्टली जो उज्र है वो रहेगा तब कोई बात नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई और अगर नाक़िज़ वजू पाया गया है तब ऐसी सूरत में उसका वजू जो होगा वो टूट जाएगा। और दूसरी चीज ये कि जैसे ही वक्त खत्म हुआ उस वक्त वजू टूट जाएगा। तब जैसे ही 4:30 बजे ज़ोहर का वक्त खत्म हुआ, असर का वक्त शुरू हुआ, ठीक है, तो भले ही कोई और नाक़िज़ वजू नहीं पाया गया, माजूर के लिए वक्त का निकल जाना, खुरूज वक्त जो है वही नाक़िज़ वजू है, ठीक है, वही नाक़िज़ वजू है। तो अब जैसे ही खुरूज वक्त हुआ तो अब ये दोबारा से असर के लिए वजू करेगी औरत, ठीक है, और उसके बाद फिर नमाज पढ़ेगी। ठीक है, और माजूर के लिए भी क्या है, माजूर के लिए कैसे पता चलेगा कि माजूर है कि नहीं, ये ऐसे ही पता चलेगा कि कोई भी ऐसा वक्त ना गुजरा हो जिसमें उस बंदे को इतनी मोहलत मिली हो कि वो जो है मतलब तहारत हासिल करके नमाज पढ़ सके, तहारत हासिल करके नमाज पढ़ सके, ठीक है। चलें, तो जब ये चीजें समझ में आ गई तो आइए अब इबारत की जानिब आते हैं। क्या फरमा रहे हैं, यहरमु मा यहरमु बिल जनाबती, जनाबत से क्या चीजें हराम हो जाती हैं, क्या चीजें हराम हो जाती हैं जनाबत से, क्या चीजें हराम हो जाती हैं जनाबत से। तो फरमाते हैं वह यहरमु बिल जनाबती, तो अशिया 5 चीजें जनाबत से हराम हो जाती हैं, और वो कौन कौन सी हैं। फरमाते हैं अस्सलातु, नमाज का पढ़ना, वक़िरातुल आयतिन, ठीक है, और कुरान करीम की एक आयत की तिलावत जो है वो भी हराम है, ठीक है, मिनल कुरानी, कुरान की, मस्सुहा इल्ला बिगिलाफिन, और इसी तरीके से हा की ज़मीर किसकी तरफ लौटी, कुरान की जानिब, कल आपको बताया था, ठीक है, और इसी तरीके से कुरान करीम का छूना मगर गिलाफ के, व दुखूलुल मस्जिदिन, और इसी तरीके से मस्जिद, व दुखूलुल मस्जिदी, ठीक है, इसी तरीके से मस्जिद का दुखूल, मस्जिद के अंदर दाखिल होना, व तवाफ़ो, और तवाफ़े काबा जो है ये हराम है, जुनूबी के लिए ये हराम है, ठीक है। तो ये तो जुनूबी के लिए था, यानी ऐसा शख्स की जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब है, और वो शख्स की जिसके ऊपर वजू वाजिब है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मुहदस, उसे क्या कहा जाता है, मुहदस, ठीक है। तो मुहदस के लिए क्या फरमाते हैं, वह यहरमु अलल मुहदसी सलासता अशियाइन, सलासतु अशिया, ठीक है, क्या फरमाते हैं, वह यहरमु अलल मुहद्दिसी सलासतु अशिया, उसके लिए और हराम है मुहद्दिस के ऊपर, बेवजू के ऊपर 3 चीजें, कौन कौन सी, अस्सलातु व तवाफु, नमाज पढ़ना, ठीक है, इसी तरीके से काबतुल्लाह का तवाफ करना, व मसहुल मुसहफी, इसी तरीके से मुसहफ का मसह करना, उसको छूना, कुरान करीम का छूना, इल्ला बिगिलाफिन, मगर बगैर गिलाफ के, ठीक है। तो ये 3 चीजें मुहद्दिस के ऊपर हराम है, लेकिन कुरान करीम का पढ़ना जो है ये हराम नहीं है, लेकिन जो है जो मुहद्दिस है, ठीक है, सॉरी, जो जुनूबी है उसके ऊपर कुरान पाक का पढ़ना भी हराम है, ठीक है। अब हम ऊपर पढ़कर आए थे कि जो औरत हाइजा है या नुफसा है, ऐसी सूरत में उसके ऊपर भी कुरान पाक का पढ़ना हराम है, लेकिन याद रखें कि इस सूरत में जो कुरान करीम की वो आयतें कि जो किसी दुआ जो है उस पर मुश्तमिल है, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना, इसी तरीके से दुआ कुनूत वगैरह जो है जो हदीस के अंदर आई हैं, ठीक है। तो कुरान और हदीस की वो मतलब कुरान की वो आयतें जो दुआ के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है, उनका पढ़ना दुआ की नियत के साथ जायज़ है, दुआ की नियत के साथ जायज़ है। अलबत्ता जनाबत की हालत में ना दुआ के तौर पर पढ़ा जा सकता है और ना ही ज़िक्र के तौर पर पढ़ा जा सकता है। और मुहद्दिस जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर सकता है, ठीक है, चाहे वो तिलावत की नियत से करे, चाहे वो बरकत की नियत से करे, चाहे वो दुआ की नियत से करे, किसी भी नियत से करे वो कर सकता है। इससे ये पता चला कि अगर क्या नाम है, अगर कोई बंदा मतलब कुरान छू नहीं रहा, बगैर छुए कुरान को पढ़ रहा है तो ये उसके लिए जाएगा, ठीक है। जैसे बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो
टैब वगैरह जो उसमें कुरान पाक पढ़ते हैं, मोबाइल में कुरान पाक पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या नाम है, टैब में कुरान पाक पढ़ने के लिए या जो है मोबाइल में कुरान पाक पढ़ने के लिए अब जो है वजू की ज़रूरत नहीं है, वजू की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो है मतलब वजू की वजह से ही लोग जो है क्या नाम है कुरान पाक वगैरह नहीं पढ़ पाते, कहते हैं कि मतलब कौन वजू करेगी ना। तो ऐसी सूरत में बेहतर यही है कि अपना कुरान वगैरह जो है उसमें मोबाइल पे डाउनलोड कर लें या जो अपने टैब पे डाउनलोड कर लें और आराम ये करनी चाहिए कि वजू के साथ पढ़ें। लेकिन जो ये है कि अगर कोई बंदा बगैर वजू के भी पढ़े तो उसका ये तिलावत कुरान पाक जो है ये जायज़ है। आगे क्या फरमा रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि जो इस्तिहाज़ा जो है वो जो है ऐसा ही है जैसे कि किसी बंदे की नक्सीर फूटती है, ऐसा ही है जैसे किसी की नक्सीर फूटती है। फरमाते हैं, कह रहे हैं कि वदमुल इस्तिहाज़तु, वदमुल इस्तिहाज़ती, और इस्तिहाज़ा का खून जो है कर रुआफी दाइमिन, वो रुआफ की तरह है, हमेशा जारी। दाइम का मतलब होता है हमेशा जारी रहने वाला, हमेशा दाइम की तरह। कसीदा बुर्दा में है ना, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, ठीक है, कि ए अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमेशा दाइम, ठीक है, हमेशा दरूद व सलाम नाज़िल फरमा। तो क्या फरमाते हैं, वदमुल इस्तिहाज़ती, और इस्तिहाज़ा का खून जो है का रवाफिन दाइमिन, तो वो ऐसा है कि जैसे हमेशा हमेशा जिसकी नक्सीर फूटी रहती है, खून निकलता रहता है। ला यमनउ सलाता, ठीक है, तो वो जो है ना ही रोजे को ना ही नमाज को रोकता है, वला सौमन, और ना ही रोजे को रोकता है, वला वत अन, और इसी तरीके से ना ही वती को रोकता है, ठीक है। तो ऐसी औरत की जो इस्तिहाज़ा जो हालत इस्तिहाज़ा में है, ठीक है, 10 दिन 40 दिन से ज्यादा है, तो ऐसी औरत नमाज भी पढ़ेगी, रोजे भी रखेगी और वती भी कर सकती है, ठीक है। अब आगे क्या है, अहकामुल माजूर, अहकामुल हजरत एक माजूर। सवाल था, जी हजरत एक सवाल था। हजरत अगर इस्तिहाजा 40 दिन तक भी चल रहा है तो फिर बीच में हैज के कोई दिन काउंट होंगे, क्योंकि 2 तहुर के बीच में 15 दिन का वक्त कहा था ना आपने, हाँ तो हाँ, या तो फिर वो सारा कुछ इस्तिहाजा ही होगा? 40 दिन बताइए किसके लिए। आपने इस्तिहाजा की मिक़दार 40 दिन बताई है, राइट? नहीं, अगर 40 दिन भी खून जा रहा है तो वो वो कब है, इस्तिहाजा 40 ही दिन कब है, 40 दिन कब है, हैज की अलग है, है। निफास की अलग है। हैज की सूरत में इस्तिहाजा कब काउंट होगा और निफास की सूरत में इस्तिहाजा कब काउंट होगा। अगर कोई औरत हाइजा है उसके लिए तो इस्तिहाजा काउंट होगा 10 दिन के 10 बाद, डेज के बाद, जी, ठीक है। और अगर कोई औरत नफसा है तो तो उसके लिए उसके लिए 40 दिन के बाद 40, है, ठीक है। तो जो जी नफसा होगी उसको तो वैसे भी हैज नहीं आएगा। जी हजरत। लेकिन अगर किसी को 10 दिन के बाद अगर जारी है मुसलसल, अगर 20 दिन तक उनके लिए जारी है, तो उसके बाद उनके हैज के दिन कब से काउंट होंगे फिर? तो दो हैजों के दरमियान कम से कम कितनी मुद्दत होनी जरूरी 15 दिन। है, 15 दिन, ठीक है। तो 10 दिन तक जो है ये तो हैज चला, ठीक है। जी अब लेकिन खून जारी है, ठीक है, तो 10 दिन तक तो हैज चला। अब 10 दिन के बाद अगले 15 दिन तक भले ही खून जारी है लेकिन वो जो है तोहर के दिन है, बाकी के दिन है, और जैसे जी, ही 15 दिन खत्म हुए तो अब फिर से वो हैज काउंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। समझ में आया कि नहीं। जी हाँ हजरत, समझ में आया। सही। तो आगे क्या है, वह अहकामुल माजूर, तो ये माजूर का हुक्म। माजूर मैंने आपको बता दिया, ऐसा शख्स के जिसके पास कोई उज्र मौजूद हो है, और ऐसा उज्र कि जिसकी बिना पर एक नमाज का वक्त मुकम्मल गुजर जाए और उसके पास इतना वक्त भी ना मिले कि वो तहारत हासिल करके नमाज पढ़ पाए, ठीक है। तो ऐसे शख्स के बारे में क्या है, ऐसे शख्स के बारे में है कि वतवज़्ज़उल मुस्तहाज़तो, ठीक है। तो मुस्तहाजा औरत हो, ठीक है, या वमन बिही उज्रन, और ऐसा शख्स कि जिसके पास कोई उज्र हो, बिही का मतलब हो, उसके पास हो, ठीक है। और ऐसा शख्स कि जिसके पास कोई उज्र मौजूद हो, ठीक है। और वो उज्र कैसे हैं, तो फरमाते हैं का सलसिल बौलिन, का सलसिल बोलिन, ऐसा शख्स कि जिसके हमेशा खून पेशाब के कतरे निकलते रहते हैं, सलसिल बौल जिसे कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से क्या है, वह इस्तिक्लाकु बतनी, इसी तरीके से डायरिया,
ठीक है। इसी तरीके से इस्तिक्लाकु बतनी, इसी तरीके से पेट का चलना, ठीक है, यानी पतले पखाने का होना, जैसे हम लूज मोशन वगैरह कहते हैं ना, कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसके इतने पतले पखाने हो रहे हैं, ठीक है, बाद औक़ात ऐसा होता है कि इतनी तबीयत खराब है कि मतलब पेट जो है वो थमता ही नहीं है, ठीक है, तो जो है पखाने पे पखाने हो रहे हैं, ठीक है, या तो वो है, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ से ये है, और ये यहाँ पर इन्होंने ये एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, माजूर के। अब ये इबारत से यहाँ से शुरू है, क्या फरमा रहे, बतवज़्ज़उल मुस्तहाज़तु वमन बिही उज़्रुन, तो वजू करेगी मुस्तहाज़ा औरत और वो शख्स की जिसके पास कोई उज़्र मौजूद है, ली वक्तिन कुल्ले फर्दिन, हर फर्ज के वक्त, हर फर्ज के वक्त, जैसे ही फर्ज नमाज का वक्त शुरू होगा, किसी भी नमाज का वक्त शुरू होगा, वो हर एक के लिए नए सिरे से वजू करेगी। युसल्लूना बिही मा शाऊ मिनल फराइज़ी व नवाफिली, और नमाज पढ़ेंगे वो लोग माजूर, और नमाज पढ़ेगा माजूर बिही, उस वजू से जो उसने वजू किया। देखिए ये यहाँ पे लिखा है ना, बैन सुतूर में क्या लिखा है, बी वजूइहिम, उस वजू से वो पढ़ेगा मा शाऊ, वो जो चाहे, मिनल फराइज़ी व नवाफिली, मतलब जितने फराइज पढ़ना चाहे, नवाफिल पढ़ना चाहे, जो करें, ठीक है। इसी तरीके से कुरान पाक को छूना चाहे, उसकी तिलावत करना चाहे, जो चाहे करें, ठीक है, तो उनके लिए इस बात की इजाजत है। अब उनका वो रोजा जो उनका ये जो तहारत है, ये कब ज़ाइल होगी, फरमाते हैं वयब्तुलुल वुज़ू, ठीक है, वयब्तुलु वुज़ूउल माज़ूरीन, और बातिल कर देता है माज़ूरीन का वजू, क्या चीज, बी खुरूजिल वक्ती फकत, वक्त का निकल जाना फकत, सिर्फ वक्त के निकल जाने ही से उनका वजू जो होगा वो बातिल हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है ना, ये मैंने आपको बताया कि जो है क्योंकि इनको जो ये छूट मिली हुई थी ये सिर्फ उज़्र के बिना पर थी, ठीक है। तो जब तक उज़्र है, और ये है कि जैसे ही नमाज का वक्त चालू होगा तो जो है ये वजू करेंगे, वजू करने के बाद अपने फराइज़ और नवाफिल जो है जो कुछ भी करना किया, और जैसे ही वक्त खारिज हुआ इनका वजू जो होगा वो अपने आप टूट जाएगा। तो कहने का मकसद ये कि माजूर के ऊपर वाजिब है, और माजूर के अंदर इस्तिहाजा वाली औरत भी आती है, कि उनके ऊपर वाजिब है कि हर नमाज के लिए वो अलग से वजू करें, हर नमाज के लिए वो अलग से वजू करें। अब ये कह रहे हैं कि माजूर बनता कब है, माजूर बनता कब है। अब ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा है कि चलो खून तो आ रहा है, ठीक है, अब जैसे कि ज़ोहर का वक्त मैंने आपको बताया कि 12:30 बजे से 4:30 बजे तक वक्त है, ठीक है। अब आप देखिए 12:30 बजे से खून तो चालू हो गया, 12:30 बजे से मतलब निकल रहा है, रेगुलरली निकल रहा है, लेकिन उसको इतना वक्त मिला, मतलब आधा घंटा 1 घंटे का वक्त ऐसा था कि जिसमें नहीं आया खून, ठीक है। इसी तरीके से कोई इस्तिहाजा वाली औरत है, ठीक है, तो ठीक है खून आ रहा है, लेकिन ऐसा वक्त भी उसको मिला आधे घंटे का, 1 घंटे का, मतलब उसको मिल जाता है इतना वक्त, ठीक है, कि जितने में जो है वो वजू करके नमाज पढ़ सकती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अब इनको माजूर नहीं कहा जाएगा, अब ऐसी सूरत में इनको माजूर नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरे के पूरे वक्त में उज़्र का पाया जाना ये जरूरी है, ठीक है। तो 12:30 से 4:30 के दरमियान ऐसा वक्त गुजरा ही नहीं कि इनको इतना टाइम मिलता कि ये वजू करके नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है, तब है। तो वही फरमाते वला यसीरुल माजूरन, और नहीं होगा माजूर, ठीक है, कोई भी शख्स औरत उसको माजूर करार नहीं दिया जाएगा, वला यसीरुल माजूरन हत्ता यस्तव अबहुल उज़्र, यहाँ तक कि घेर ले उज़्र, यहाँ तक कि घेर ले उज़्र, वक्तन कामिलन, वक्त को मुकम्मल तौर पर, वक्त को मुकम्मल तौर पर, और किसका वक्त, नमाज का वक्त, नमाज के कामिल वक्त को, लईसा फीही इनकिताउ, नहीं हो उसमें इनकता, यानी उज़्र रुके ना, बिक़द्रिल वुज़ूई वस्सलाती, नमाज और वजू और नमाज के लिए, ठीक है। तो पूरे वक्त में जो है उसने घेर लिया हो, ठीक है, उस उज़्र ने पूरे वक्त को घेर लिया हो कि जिसमें उनको इतना भी टाइम ना मिला हो कि रुक गया हो उज़्र, ठीक है, वजू और नमाज के मिकदार में, ठीक है। वहादा शर्तुन सबूत हो, और यही इसके सबूत की शर्त भी है, और यही इसके सबूत की शर्त भी कि कोई किसी शख्स को हम माजूर सिर्फ और सिर्फ हम तब कहेंगे कि जब तक एक नमाज के कामिल वक्त तक जो है उनका उज़्र जो है वो ज़ाइल ना हुआ हो, ठीक है। असर का वक्त शुरू होता है 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, ठीक है। तो अब ये भी नहीं कि आपको सिर्फ वजू का लेके चलना, कोई भी वक्त हो, ठीक है। तो जोहर से लेकर अगर आप असर से मगरिब कह रहे हैं तो ये 2 घंटे 3 घंटे जो, इस 3 घंटे के अंदर भी उनको इतना टाइम नहीं मिला, ठीक है, कि वो वजू करके नमाज पढ़ सकते, तो ऐसी सूरत में तब उनको माजूर करार दिया जाएगा। तो ऐसा शख्स कि जिसके कभी होता है कभी नहीं होता, जोहर के टाइम तो चले खून निकल रहा था, ठीक है, तो वो सिर्फ तब तक वो माजूर रहेगा, ठीक है, 12:30 से 4:30 बजे तक, तब तक वो माजूर है, लेकिन उसके बाद खून बंद हो गया तो फिर अब वो नॉर्मल हो गया, ठीक है।
آگے کیا فرماتے ہیں وشرط دوامہ ووجودہ فی کل وقت بعد ذلک ولو مرۃ. آگے کیا فرماتے ہیں اور اب جو ہے دوبارہ سے یہ بندہ اس کو ہم کنسیڈر کب کریں گے کہ اب یہ معذور نہیں رہا, نارمل ہو گیا, مطلب نارمل حالت میں ہو گیا. تو وشرط دوامہ اور اس کے ہمیشہ رہنے کی شرط ووجودہ اور اس کے پائے جانے کی شرط, ٹھیک ہے, عذر کا دوام اور اس کا وجود جو ہے فی کل وقت بعد ذالک, تو اس کے ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, جب پہلی مرتبہ خون بند نہیں ہو رہا تب تک وہ معذور ہی مانا جائے گا, اگرچہ صرف ایک مرتبہ ہو. آگے کیا فرماتے ہیں وشرط انقطاعہ وخروج صاحبہ عن کونہ معذورا خلو وقتا کاملا عنہ. اور کب مانا جائے گا کہ اب یہ عذر اس سے زائل ہو چکا ہے, مطلب اب یہ عذر اس میں نہیں ہے, تو اس کی شرط یہ ہے کہ پورا کا پورا وقت گزر جائے, نماز کا پورا وقت گزر جائے, اور اس پورے کے پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی ان کو دوبارہ خون نہ ہے, ایک مرتبہ بھی دوبارہ نقصیر نہ پھوٹے, ایک مرتبہ بھی دوبارہ ری خارج نہ ہو, ایک مرتبہ بھی دوبارہ جو ہے پتلے پخانے نہ ہو, ٹھیک ہے, پیٹ نہ چلے, تو تب ان کو کہا جائے گا کہ اب وہ جو ہے معذور نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ تو دیکھیں یہاں پر اصل میں یہ سلسل بال وغیرہ جو ہے نا, اس کے کافی مسائل آتے ہیں کہ پیشاب وغیرہ, تو سب سے چاہے وہ استحاضہ ہو, چاہے وہ نقصیر کا پھوٹنا ہو, چاہے وہ ڈائریا ہو, چاہے مطلب کوئی بھی جو عذر ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اس میں ضروری ہے کہ علاج کرایا جائے گا, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, یہ یہاں پر احکام بیان کر دیے گئے ہیں, لیکن ضروری ہے کہ ان تمام کی تمام چیزوں کے لیے جو ہے کیا نام ہے علاج کرایا جائے, چاہے وہ استحاضہ ہو, چاہے وہ مطلب پیشاب کا بار بار آنا یا قطروں کا نکلنا ہے نا, تو اس کا علاج کرایا جائے. اور جب تک علاج نہیں ہو رہا تب تک جیسے اگر پیشاب بار بار آ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ انڈرویئر وغیرہ جو ہے اس میں کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لے, تاکہ اگر پیشاب وغیرہ اگر مطلب نکلے بھی تو وہ جو ہے ٹیشو پیپر وغیرہ یا کپڑا وغیرہ جو ہے وہ اس کو سوکھ لے, اور بعد میں جب وضو کا وقت آئے تو اتنے ٹائم نیا کپڑا رکھ لیں. تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. صحیح, چلیں آج کے لیے اتنا کافی. کل ہم لوگ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے, اگلی بار انشاءاللہ باب الانجاس والطہارۃ عنہا, ٹھیک ہے, نجاست جو ہے اس کا بیان, نجاست غلیظہ, نجاست خفیفہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. حضرت ایک سوال تھا حضرت. جی حضرت اگر کوئی نماز کے لیے جب کھڑا ہوا اور ضرورت کے لیے گیا, مطلب آپ پورے وقت کے لیے نہیں, لیکن اگر وہ بیچ میں شروع ہو گیا, جیسے 12:30 to 4:30 آپ نے ظہر بتایا, ہاں ٹھیک اور ہے کسی نے 3 بجے نماز کا ارادہ کیا, ٹھیک ہے. اور استنجا کے بعد اب یہ جو سلاسل بال والی صورت شروع ہو گئی ان کی, اور 4 بجے تک بھی چل رہا ہے وہ, ہاں تو کیا ابھی بھی اس کو معذور کہیں گے یا پھر وہ وقت ختم قضا ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا؟ تو ایسی صورت میں یہ معذوری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے ابھی مطلب ارادہ اس نے, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ارادہ اس نے 3 بجے کیا نماز پڑھنے کا, ٹھیک ہے, اب جی 12:30 سے 3 بجے تک کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, کیا اسے پتہ ہے یہ جی, قطرے اس نکل؟ کو پتا ہے کہ وہ نہیں ہے, اگر ایسا ہے. اچھا, تب ایسی صورت میں تب اس کو معذور کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ معذور کنسیڈر کرنے کے لیے یہ شرط ہے, ٹھیک ہے, کہ جی نماز کا مکمل وقت گزرے, اور اتنا گزرے کہ اس کے پاس اتنا بھی وقت نہ ملے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے, جی ٹھیک ہے. تو اب یہ یہاں پر اگر مطلب واقعی یہ تھا کہ اس کو جو ہے مطلب اس کو پتا ہے کہ یہ 12:30 سے 3 بجے تک اس کے نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں اب وہ جو ہے معذور نہیں. جی 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 صحیح. اور کوئی سوال؟ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, کچھ مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ حضرت ایک سوال. جی حضرت یہ کل کی کلاس کا تھا, بس یہ جاننا تھا کہ ابھی حیض کا جو سٹارٹ ڈے ہوتا ہے وہ نماز کے 5 دن کی نماز تک رہے گا, یا کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ کیا چیز؟ حیض کے ڈیوریشن, جی حیض کے ڈیوریشنز ابھی فار ایگزامپل ایک عورت کو ظہر سے پہلے حیض آ گئے, تو وہ 5 دن کے بعد ظہر تک اس کا وقت رہے گا یا کیسے رہے گا؟ کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ایک نماز کا وقت چھوڑ کے پھر غسل کریں گے اگر کم دن لگیں گے.
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب اس کے ظہر کے ٹائم اس کا ختم ہو گیا جی ظہر کے ٹائم اس کا کیا نام ہے اس کا حیض ختم ہو گیا، تو اب وہ جو ظہر کا وقت جو ہے نا وہ ویٹ کرے گی، ٹھیک ہے. تو جب جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہو گیا تو اب جو ہے اب وہ غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد پھر وہ یہ کیا نام ہے اس کی قضا پڑے گی ظہر کی. یہ نمبر آف ڈیز کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ اگر یہ نماز سے نماز تک رہے گا یا ڈیز ایز اے نمبر کیلکولیٹ کریں گے؟ اس کے بھی جو نا آر سی کیلکولیٹ کریں، جیسے ہم 3 دن 3 رات کا کیلکولیٹ کر رہے تھے، 1 دن 1 رات کا کیلکولیٹ کر رہے تھے نا 24 گھنٹے 72 آورس، اسی طریقے سے اس کا بھی کیلکولیٹ کرنا. اچھا یا عموماً جو ہے وہ عورتوں کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے پچھلے بار فون ظہر کے ٹائم بند ہوا تھا، عصر کے ٹائم بند ہوا تھا، عشاء کے ٹائم بند ہوا تھا. جی جی حضرت جزاک اللہ. صحیح. اس کے بعد کیا ہے، ان کا ہے حیض کی حالت میں ذکر کرنا، آیت درود شریف پڑھنا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں. ٹھیک ہے جی حضرت. چلیں ٹھیک ہے، پھر آج کے سیشن کو یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں عزت وقار کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، سے بچائے، ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی نیک دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.